عطیہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں. آپ کے مضمون کا عنوان ہے اردو دوہے پر سنسکرت کے تہذیبی و لسانی اثرات. براہ کرم تشریف لائیں. السلام علیکم. ناظم جلسہ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا فائنڈنگ پیش کیجئے اور میں صدور حضرات سے متوجہ رہتا ہوں کہ جب اردو کا پروگرام ہوتا ہے ہم میڈیکل کالج میں جب جاتے ہیں تو 1.25 منٹ دیے جاتے ہیں. 1.25 منٹ میڈیکل کالج میں دیے جاتے ہیں. تو کہا تو میں ٹھیک ہے میں فائنڈنگ پیش کر رہا ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو دوہے پر سنسکرت ہندوستانی نہیں سنسکرت تہذیب کی لسانی و تہذیبی اثرات. تہذیبی و لسانی اثرات ہندوستانی نہیں. میں سوال چھوڑوں گا صدور حضرات کے لیے کہ سنسکرت اور ہندوستانی تہذیب میں تفریق کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے میرا کہ یہ خالص ہندوستانی صنف ہے جو پراکرت اور ابھرنش کی دین ہے. پہلا پوائنٹ فائنڈنگ پراکرت اور ابھرنش کی دین ہے, سنسکرت کی دین دوہا نہیں ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوہا کا اصل موضوع جو ہے پند و نصائح. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم دوہا دیکھتے ہیں تو دوہا کی ایجاد جو ہوئی عالموں سے نہیں ہوئی ہے. عالم یعنی علماء فصحاء ودبا سے دوہے کی ایجاد نہیں ہوئی ہے. کیونکہ جب ہم دوہے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں اور ابرنش ہوتے ہیں, ریختہ ہوتے ہیں اور عوامی علاقائی زبانیں اس میں ہوتی ہیں. یہ ہوا تیسرا پوائنٹ. ٹھیک سر. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر دوہے کے اندر جو ہے سنسکرت کے اثرات آئے. سنسکرت کی تہذیب ہے کم ہے, بہت کم. ہندوستانی تہذیب ہے. سنسکرت اور ہندوستانی تہذیب کے مابین کیا فرق ہے وہ ہمارے صدور حضرات آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کریں گے. میں مختصر انداز صدور کے ساتھ بھی ملحق کر دیا اس وجہ سے کہ میں میڈیکل کالج میں گیا, میرا ٹاپک تھا ہندوستانی تہذیب کے تعلق سے. میں 5 منٹ پڑھا, میرا شرٹ کھینچا جانے لگا کہ آپ کا ٹائم ہے 4.25 منٹ یعنی 4 منٹ 25 سیکنڈ. ڈی ایم ایم ڈی سب اتنے پر وہ کر دیتے ہیں, پریزنٹیشن بھی کیا جاتا ہے. ہم اردو والے لگے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ بھی بہرحال. تو یہ پوائنٹ ہوا. اب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دوہا کا اصل موضوع بتایا اور میں کچھ اشعار پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر سنسکرت تہذیب کیسی ہے. بس 2-1 اشعار. دیکھ نذیر اپرابادی جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے شاعر ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دوہا ہے کہ پہلا ناؤ گنیش کا لیجیے سیس نوائے, جا سے کاج سدھ ہو مہورت لائے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں سنسکرت تہذیب کیا ہے. اب یہ تہذیب ہے. اور دوسری تہذیب یہ ہے کہ بھکتی سے بھگوان کی من جن کا بھرپور, رکھے اپنی آتما چنتا سے وہ دور. اس میں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنسکرت تہذیب کیا ہے. ایک بہت تصور صاحب ایک ہے, ان کا دوہے کا شعر ہے کہ پورا دیش کٹمب ہے بھائی سب کو جان, بھارت ماں کے پتر ہیں سب جن ایک سمان. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا تہذیبی. اب ایک لسانی جس میں ہے ندا فاضلی صاحب کا ایک شعر پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں. قسمت عصمت کچھ نہیں سب کا ایک ودھان, جگتے کا سنسار ہے سوتے کا شمشان. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں اب اس پہلے ادبی اجلاس کے آخری مقالہ نگار ڈاکٹر خواجہ مخدوم محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں. اسٹیج پہ تشریف فرما موجز حضرات اور اس حال میں موجود اساتذہ کرام, اسکالرس, ریسرچ اسکالرس, آپ تمام کی خدمت میں میرا سلام. میں اپنے مقالے کے آغاز سے پہلے
सदर शोबे उर्दू और शोबे उर्दू को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने उर्दू और संस्कृत के रिश्ते पर एक बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया है और इसकी कामयाबी के लिए मैं नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आज का मेरा उन्वान है दास्तान बागो बहार में माफ़ूक़ुल फितरत पर संस्कृत पे जो नक़ूश रहे हैं उससे मुताल्लिक़ संस्कृत में जो माफ़ूक़ुल फितरत है उसका और उर्दू का मैं तक़ाबुली जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा ख्याल थोड़ा सा तवील है। अतीक भाई फ़ोन करके बोल दो चाय लिया निशा सर बोलते ठीक है मैं नहीं लगा सकता ना। दास्तान बागो बहार में आई रिक्वेस्ट टू बागो बहार में फितरत अनासिर पर यार नक़ूश दास्तान बागो बहार में माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर पर संस्कृत के नक़ूश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दास्तान बागो बहार उर्दू का एक अजीम शायरकार है जो अपने अदबी हुस्न तख्लीकी पहलुओं और माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर के मुतफ़िक़ इस्तेमाल की वजह से उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम रखती है। ये दास्तान एक ऐसी किस्माती माहौल को जन्म देती है जिसमें जिन परियां जादुई वाक़यात और हैरत अंगेज़ दुनिया के अजायब शामिल हैं। दास्तान माफ़ूक़ुल फितरत के अनासिर न सिर्फ कहानी की कशिश बढ़ाते हैं बल्कि इस दौर के समाजी और सक़ाफ़ती तसव्वुरात की भी अक्कासी करते हैं। दास्तान बागो बहार में परियां जादुई किस्मत हैरत अंगेज़ मकामात जैसे अनासिर कहानी को दिलकश और दिलचस्प बनाते हैं। मसलन कहानी में ऐसे वाक़यात जहाँ जिनके किरदारों को क़ैद करते हैं या इन अनासिर का मकसद न सिर्फ क़ारी को मुतासिर करना बल्कि ख़याली दुनिया की तख्लीक़ करना है जो हकीकत और तस्वुर के दरमियान एक पुल का काम करती है। इस हिस्से में तमाम अनासिर की तफसील दी जा रही है। ये दिखाया जाएगा कि कहानी के प्लाट को किस तरह पढ़ा जाता है। अब रामायण और महाभारत जैसे संस्कृत अदब के शाहकारों में माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर का जिक्र कसरत से मिलता है। रामायण में हनुमान की परवाज़ या महाभारत में किशन के मोजज़ात और इस दौर की तख्लीकी रिवायत की अक्कासी करते हैं। यह अनासिर कहानी को मजहबी, रूहानी और सक़ाफ़ती तौर पर मजबूत बनाते हैं और इस तरह अब अगर हम उसका तक़ाबुली जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि उर्दू और संस्कृत अदब में माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर के दरमियान मुमासिलत और फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है। मसलन जिन और परियों के किरदारों रामायण के देवताओं और असरियों से कैसे मुमासिलत रखते हैं। ये तज़िया दोनों अदबी रिवायत के फ़लसफ़ाना और तख्लीकी पहलुओं को समझने में मदद देता है। माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर के अलामती पहलू शामिल है। मसलन बागो बहार में जादुई वाक़यात इंसानी ख्वाहिशात या खौफ की अक्कासी करते हैं। इसी तरह संस्कृत अदब में माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर मजहबी और रूहानी पैगाम देते हैं। उर्दू और संस्कृत अदब के माबैन तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात के तहत फ़ारसी और हिंदी ज़बानों के अदबी असरात का भी जिक्र मिलता है। और इसका उसके पर हिंदी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों के अदबी असरात का भी जिक्र है जो बागो बहार और दीगर अदब पर इसका असर हुआ है। कहानियों में माफ़ूक़ुल फितरत अनासिर जैसे जिन्नात, परियां, जादुई मखलूक अहम किरदार अदा करती हैं। इस मकसद का सिर्फ कहानियों को दिलचस्प बनाना नहीं है बल्कि इन मखलूक़ात की मौजूदगी इंसान की नफ्सियाती और अखलाकी तस्वुरात को भी चैलेंज करती है। माफ़ूक़ुल फितरत के अनासिर की मौजूदगी इस बात का एहसास इजहार करती है कि इंसान की ज़िंदगी में मौजूद खराफात, खौफ, ख्वाहिशात और तक़दीर का अमल दखल इन कहानियों में अखलाकी अज़बाक़ और इंसानी फितरत की पेचीदगियाँ ज़ाहिर करती हैं जिससे क़ारीन को एक गहरी बसीरत मिलती है। बागो बहार में जिन्नात, परियां और जादुई मखलूक अक्सर कहानियों के धार्मिक और अखलाकी पेचीदगियों का हिस्सा बनकर नमूदार होती है। इन कहानियों में जादुई अशिया जैसे तिलिस्मी कमरे,
जादू की छड़ी मौजूदात का किरदार होता है। इनका मकसद कहानी के मरकजी किरदार को एक मुश्किल से निकालना या इंसान की तकदीर का फैसला करना है। बागो बहार में इन मखलूक़ात की मौजूदगी इंसान के अंदर के ख्वाहिशात और खौफ की नुमाइंदगी करती है, जैसे इंसान का अंदरूनी कंट्रोल, तकदीर के सामने बेबसी और कुदरती क़ुव्वतों का असर। संस्कृत अदब में मफहूल फितरत मौज़ूआत का आगाज़ रामायण महाभारत जैसे अजीम तरीन शायकारों से हुआ है। रामायण में देवताओं और जन्नात और दीगर मफहूल फितरत क़ुव्वतें इंसान की तकदीर पर असरअंदाज होती हैं। इनकी मदाखलत अखलाकी और मजहबी तालीमात की अक्कासी करती है। महाभारत में भी ताकतवर खुदाओं और जादुओं क़ुव्वतों की मौजूदगी इंसानी जंगों और अखलाकी फैसलों पर असरअंदाज होती है। उर्दू और संस्कृत अदब में महफूज फितरत अनासिर का तक़ब्बुल जायज़ा लेने से पता चलता है कि अखलाकी तालीमात की फलामी इन अनासिर का किरदार अहम है, और दोनों अदब में जादुई मखलूक़ात या देवताओं का किरदार एक मखसूस मकसद का पूरा करता है, जैसे इंसानों की रहनुमाई करना या इनके फैसलों में मदाखलत करना। बागो बहार में जिन्नात और परियां इंसानों के अखलाकी रवैयों की आजमाइश के लिए होती है, जबकि संस्कृत अदब में ये किरदार ज़्यादा तकदीर की रहनुमाई करती है। उर्दू और संस्कृत के माबैन गहरा ताल्लुक़ और असरात हैं। खुसूसी मफहूल फितरत मौज़ूआत की सूरत में बागो बहार और संस्कृत अदब में मुश्तरका मौज़ूआत और तशबीहें हैं, जैसे जादुई मखलूक़ात की मदाखलत और इंसानों की तकदीर के बारे में गहरा तफक्कुर पाया जाता है। उर्दू अदब में संस्कृत से असरात को अपनाना, ख़ास तौर पर जादुई अनासिर और अखलाकी कहानियाँ अदब की तख्लीकी तनों में मज़ीद इजाफा करता है। उर्दू अदब और संस्कृत अदब में लोक कहानियाँ मफहूल फितरत मौज़ूआत के अहम जुज़ू रही है। बागो बहार में ख़ास तौर पर मकामी कहानियों और लोक रिवायतों को शामिल किया गया है, जो मफहूल फितरत दुनिया के तसव्वुर को ज़ाहिर करती है। संस्कृत अदब में देवताओं और अफसानों में मखलूक़ात के किरदार, जैसे रामायण महाभारत की दास्तानों में जादुई मफहूल फितरत मौजूदगी जो आम ज़िंदगी के हकीकत से मुख्तलिफ है। उर्दू और संस्कृत में मफहूल फितरत अनासिर का नफ्सियाती दर्जा किया जा सकता है, और इससे पता चलता है कि दास्तान बागो बहार में जिन्नात और जादुई क़ुव्वतों की मौजूदगी का किरदार किस तरह किरदारों की नफ्सियाती हालत को ज़ाहिर करता है। इन ताकतों का इस्तेमाल नफ्सियाती तनाज़ात, शुकूक और शख्सियत की तब्दीली के लिए ज़ाहिर किया गया है। तो ये मेरा मरहला चूँकि तवील है, मैं चूँकि चिट्ठी आ चुकी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। जो मौका इनायत किया गया है उसका मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जदीदियत और मावाद जदीदियत के शायर को आपके यहाँ खासे क्या अल्फाज जो है ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल संस्कृत के अल्फाज हैं। और उर्दू की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कुशादा दिल भी है, कुशादा जहन भी है। अपने दूसरी ज़बानों के अल्फाजात को वो कबूल भी करती है और उनको अपने में जज्ब भी कर लेती है। ये उर्दू की सबसे बड़ी खसूसियत मानी गई है और मानी जाती है। बागो बहार का एक अजमाली जायज़ा पेश किया मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने मफहूल फितरत अनासिर के हवाले से। यकीनन ये दास्तान एक सलीस दास्तान है, इससे पहले ये दास्तान लिखी जा चुकी थी मुरस्सक अनवान से, लेकिन वो पसंद नहीं की गई क्योंकि उसकी ज़बान काफ़ी मरवज्जा थी, सख्त ज़बान थी जो आम लोगों की पहुँच से दूर थी। तो गिलक्रास्ट ने मीर अहमद को ये कहा कि आप इसको सलीस और सादा ज़बान में लिखिए, तो अच्छा शाहकार है। मफहूल फितरत अनासिर की बात जब आएगी तो इन्होंने संस्कृत के मफहूल फितरत की जिक्र की। जिन, देव, परी, शहजादे ये वहीं से आए हुए हैं जिसका आपने खूबसूरती के साथ जिक्र किया है। बहरहाल बहुत कामयाब सेशन था, जिसके लिए मैं फजल मुकर्रम साहब को, इनके रुफ़का को, यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स को और पेपर मकाला निगारों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा का सेशन भी इसी कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुँचेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।